तो अभी हम जिम की तरफ जा रहे हैं और हमेशा की तरह ये साइकिल पर मैं पैदल। और आपको लग रहा होगा मैंने इतनी टोपी वोपी जो पहन रखा है, तो यहाँ पे काफ़ी ठंड हो रही है। अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हो तो एकदम वो हिमाचल घर, वहाँ पे तो और ज़्यादा ठंड हो रही है। हाँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल हो रहा है 9 डिग्री टेम्परेचर, फॉग निकल रही है मुँह से। और आज है पुश डे। उस दिन मेरा आउटफिट भी थोड़ा बकवास सा था और जिम भी थोड़ा भरा भरा हुआ था, तो उस दिन इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं आ पाई थी और मतलब उतना अच्छा वर्कआउट भी नहीं हुआ था। बट आज कुछ डे मैंने आउटफिट भी थोड़ा अच्छा पहना है और साथ में हमारे प्रोफेशनल कैमरामैन भी है। तो क्या पता अच्छा व्लॉग बन जाए। तो अभी हम जिम में चलते हैं और एक अच्छा सा वर्कआउट करने के बाद मैं आपसे मिलूँगा। ट्रेनिंग को लेकर कुछ बात करनी है, तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ देर बाद। एन्जॉय द वर्कआउट। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold outside, yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.
तो यहाँ पे मेरे पास 60 ग्राम बॉइल्ड सोया है और मतलब इसकी कोई ऐसी खास रेसिपी है नहीं, बट मैं थोड़ा सस्पेंस बनाना पड़ता है भाई तुम लोगों के लिए, वरना तुम अगली वीडियो देखोगे नहीं। तो मतलब इसमें कुछ मसाले डालता हूँ मैं, और इसकी रेसिपी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी ये मम्मी ने पहले ही बॉईल कर दिए थे और फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी फ़िलहाल मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, 9 बजने ही वाले थोड़ी देर में, तो मैं क्लास अटेंड करूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। 9 से 2 बजे तक तो क्लास ही होगी। बाकी अगर मैं बीच में कुछ थोड़ा फ्री हुआ या लेक्चर एक आधा मिस कर दिया तो मैं शायद ब्लॉग बना दूँ। ट्यूबलाइट तो अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। तो ये है मेरी फेवरेट प्लेस विद माई ऑल टाइम फेवरेट थिंग। तो एक चीज़ अगर मैं आपसे एकदम सच बोलूँ, बिल्कुल झूठ नहीं, तो मेरे को सबसे ज़्यादा याद पता है किस चीज़ की आती है? इनकी। पता है आपको, अगर मेरी जितनी भी बॉडी है, कुछ भी जितनी भी मसल्स हैं या मैं जो भी हूँ, उन वेट्स की वजह से ही हूँ। तो मेरे को लगता नहीं मैं उन्हें कभी बेचूंगा, मैं उन्हें हमेशा एज अ मेमोरी रखूँगा। अगर और मतलब मैं मिस उन्हें इसलिए करता हूँ क्योंकि आजकल मैं जिम जाने लगा हूँ जैसे, तो मैं वहीं पे वर्कआउट करता हूँ मतलब। और मैं लिटरली सच बताऊँ अगर, तो मैं अपनी छत को बहुत मिस करता हूँ। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मतलब नहीं बल्कि 3 साल से मैं यहीं पर ट्रेनिंग करता था, और मतलब मेरे को यहाँ पे एक तो पीस बहुत है, यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा, ऊपर से मेरे को शांति बहुत पसंद है। मैं एकदम चुप रहने वाला बंदा हूँ, मैं ज़्यादा इससे बोलता नहीं कुछ। मतलब जैसे जितने भी लोग जानते हैं मेरे को यही बोलते हैं कि चुप चुप रहता है। मतलब मेरे को बस अपने ईयरफोन्स चाहिए और मेरे को फ़ोन चाहिए, मैं किससे कुछ नहीं बोलता ज़्यादा, बहुत ही कम। जैसे मतलब अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था तो भाई बात हो ही जाती है। तो मतलब एक तो मेरे को पीस में वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऊपर से मेरी फेवरेट प्लेस है। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करता था अकेले में, और अगर मेरे से कोई आज भी पूछे कि मेरे को कहाँ ट्रेनिंग करना ज़्यादा पसंद है, तो हमेशा वो क्षति होगी मेरी, क्योंकि बॉडी एक टाइम तक ही ग्रो करती है ना घर पर, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड जैसे हो नहीं पाता बहुत घर पे, तो इसलिए जिम जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे वेट्स ज़्यादा होता है। मतलब प्लेट्यूज ब्रेक होता है। प्लेट्यूज अगर आपको नहीं पता, प्लेट्यूज का मतलब होता है कि मतलब जब आपकी प्रोग्रेस जो होती है रुक जाती है, मसल ग्रोथ रुक जाती है, फैट लॉस कुछ भी रुक जाता है, उसे प्लेट्यू बोलते हैं। तो घर में एक्सरसाइज करते करते प्लेट्यू हो गया था मेरे को, और मतलब इसलिए मेरे को जिम जाना ज़रूरी था अगर मेरे को और मसल बिल्ड करनी है। घर में आप एक हद तक फिट रह सकते हो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसल बना सकते हो, बट एक पॉइंट पर आपको जिम जाना ही पड़ेगा, या और वेट्स या और ओवरलोड डालनी ही पड़ेगा बॉडी पे, वरना बॉडी ग्रो नहीं करती। तो इसलिए मैंने फिर जिम ज्वाइन करा। पर मेरे को आज भी अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि घर पे भी मतलब अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मसल आप बना सकते हो या फिर और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, तो मैं कभी भी जिम नहीं जाता, मैं सच बताऊं, क्योंकि मेरे को अकेले में ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है। वहाँ पे कभी ना कभी कुछ मशीन ऑक्यूपाइड होती है या कोई और एक्सरसाइज कर रहा होता है, या कुछ भी। मतलब जैसे हम वहाँ पे जाते हैं तो 2-3 भैया आ जाते हैं हमारे से पहले। सुबह सुबह जाने लगा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को
शांति पसंद है, मैंने आपको पहले ही बताया जैसे। तो शाम को मैं जाता था, शाम को बहुत लोग होते, जिम में पूरा क्राउडेड होता था, कार्डियो सेक्शन भी भरा रहता था, और मतलब जो मेन वेट लिफ्टिंग वाली जगह है वो भी ऑक्यूपाइड रहती थी एकदम। तो फिर मैंने इसलिए सुबह जाना शुरू किया एकदम। मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ। एक दिन मैं फुल डे ऑफ ईटिंग या फुल डे लाइफस्टाइल बनाऊँगा किसी दिन। तो सुबह सुबह मैं उठ जाता हूँ 5 बजे, फिर मैं 6 बजे तक जो भी फ्रेश होके प्री वर्कआउट मील खा के निकल जाता हूँ। तो तब थोड़ी शांति होती है और कम लोग होते हैं, मुश्किल से 4 लड़के होते हैं और एक कोच साहब, वेदांश तो मेरे साथ ही होता है। तो फिर मेरे को थोड़ा पीस में ट्रेनिंग करनी ज़्यादा पसंद है। मैं देख रहा था भाई कहीं कैमरा ऑन हुआ नहीं हुआ कि मैं ऐसी बकवास कर जा रहा हूँ इतनी देर से। तो हाँ, मैं बस, और मैं आपसे कुछ ट्रेनिंग की बात करना चाहता था, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपसे अपनी ट्रेनिंग स्प्लिट डिस्कस करने वाला हूँ। तो मतलब मैं एक पुश पुल लेग्स टाइप का रूटीन फॉलो करता हूँ। तो वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है, मतलब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मंडेज को मैं करता हूँ चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। ट्यूसडे को लेग्स एंड एब्स। और वेडनेसडे को बैक का थिकनेस वाला वर्कआउट। अगर आप थोड़ा भी फिटनेस में हैं तो आपको पता होगा, हमारी बैक जो होती है, बैक वाली मसल्स, बैक वो 2 एस्पेक्ट से ग्रो करती है, एक तो थिकनेस में और एक वाइडनेस में। तो वेडनेसडे को मैं करता हूँ बैक का थिकनेस वाला वर्कआउट और बाइसेप्स और फोर आर्म्स उसके साथ। थर्सडे को चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। फ्राइडे को लेग्स एंड एब्स। और सैटरडे को बैक, बाइसेप्स, फोर आर्म। बैक का इस दिन मेरा वाइडनेस वाला वर्कआउट होता है। और संडे को ऑफ। तो बहुत ही बेसिक पुश पुल लेग स्प्लिट है ये। मतलब थोड़ा सा, मतलब मैंने फोर आर्म्स और बैक में आपके ट्रैप्स भी इंक्लूड होते हैं। मैं मतलब अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर के साथ आपके ट्रैप्स ज़्यादा अच्छे इन्वॉल्व होते हैं तो आप पुश डेज पर भी कर सकते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैप्स जो एक बैक का ही पार्ट है, मतलब शोल्डर का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसे पुल डेज पे हिट करता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो मंडेज को होता है पुश, ट्यूसडेज को होता है लेग्स, वेडनेसडे को पुल, और सेम आगे भी। तो अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये पुश पुल लेग्स क्यों नहीं है, मतलब पुश लेग्स पुल है, पुश लेग्स पुल है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं जैसे बहुत ही, मतलब अगर पूरा हार्डकोर चेस्ट वर्कआउट करता हूँ तो मेरे लैट्स जो होते हैं, लैट्स जो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये सोर हो जाते हैं। इसलिए मैं उस दिन वो जो कि बैक का पार्ट होते हैं, इसलिए मैं अगले दिन बैक नहीं करता। एक दिन का गैप आ जाता है बीच में जिस दिन मैं लेग्स करता हूँ। तो ये स्प्लिट मैं कम से कम बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, कम से कम 2 सालों से लगातार फॉलो कर रहा हूँ मैं ये स्प्लिट। और काफ़ी ठीक गेन्स कह सकते हो आप मेरे को मिले हैं इससे, क्योंकि एज अ नेचुरल और मतलब घर पे वर्कआउट करने के हिसाब से उससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। आजकल हार्डकोर ट्रेनिंग चल रही है मेरी। तो मैंने मतलब एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी ऑल अबाउट ओलंपिया की, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आपको ऊपर आई बटन में भी उसका वीडियो का लिंक दिख गया होगा। तो मतलब मेरे को मतलब उसमें उस वीडियो का टाइटल है हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू हिट ईच मसल पर वीक। मतलब आपको एक वीक में कितनी बार आपकी मसल हिट करनी चाहिए पर मसल ग्रुप। मतलब अगर आप चेस्ट हिट कर रहे हो तो आपने पुश पुल लेग्स में देखा कि चेस्ट जो हो रही है 2 बार हिट हो रही है, लेग्स 2 बार हिट हो रहे हैं, बैक, बाइसेप, हर चीज़ 2 बार हिट हो रही है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मतलब पुश पुल लेग्स में दिक्कत ये थी कि मतलब मैं ऑल आउट नहीं जा पा रहा था। मतलब अगर मैं शोर नहीं हो पाता था। अगर मैंने चेस्ट करी तो मैं या तो बहुत ज़्यादा अगर मैं हो गया शोर, तो फिर जो अगला थर्सडे आता था चेस्ट डे मेरा, दोबारा से पुश डे आता था, तो उस दिन मैं सॉरी होता था, तो मैं अपना 100% नहीं दे पाता था, या फिर मैं दोनों पुश डेज पे अपना 100% नहीं देता था ताकि मैं उस अगले पुश डे तक रिकवर हो जाऊं। तो मैंने ये दिक्कत थोड़ी नोटिस करी पुश पुल लेग्स के साथ। बट अभी मैंने एक नई स्प्लिट, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं बहुत ही दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने पुश पुल लेग्स बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करी है और मैं कुछ सोच समझ के ये स्टेप ले रहा हूँ। मैंने चेंज कर लिया ब्रो स्प्लिट पर। ब्रो स्प्लिट क्यों? अब मैंने ये नोटिस किया कि उस रिसर्च में भी दिखाया गया है कि मतलब अगर जैसे मैं मंडेज को अपना ऑल आउट नहीं दे रहा था तो मेरी मसल में जो डैमेज आ रहा था तो वो डीप नहीं था उतना, तो जिसकी वजह से मेरी मसल बहुत जल्दी जल्दी रिकवर हो रही थी, उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही थी। तो मैंने ये नोटिस किया कि मतलब अगर मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार हिट करूँ, जैसे चेस्ट है वो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार हिट करूँ और ऐसी इंटेंसिटी से हिट करूँ, ऐसा हार्डकोर वर्कआउट से हिट करूँ कि मतलब वो पूरे हफ्ते तक रिकवर ना हो, तो मेरे को उससे ज़्यादा सुपीरियर ग्रोथ दिखेगी। अब ये मैं यहाँ पे सही हूँ या गलत ये तो मेरे को भी नहीं पता। ये मेरे को थोड़ा, जैसे मैं अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ अभी स्प्लिट को, और तो मैं देखता हूँ कैसे किस हिसाब से मेरे मसल ग्रोथ जाती है। बाकी रिसर्च तो ये दिखा रही है कि ब्रो स्प्लिट में ज़्यादा ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू पुश पुल लेग्स। बट मैं पुश पुल लेग्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था,
तो बट मेरे को चेंज करनी पड़ी क्योंकि फॉर अ चेंज अब मैं देखता हूँ कि किस में ज़्यादा ग्रोथ दिखती है मेरे को। और बाकी ब्रो स्प्लिट मैं बताता हूँ कि क्या है मेरी। मंडे को है बैक, ट्यूसडे को लेग्स, वेडनेसडे को चेस्ट, थर्सडे को एब्स, फ्राइडे को शोल्डर, सैटरडे को आर्म्स, फ्राइडे को शोल्डर, सैटरडे को आर्म्स, ठीक है, और संडे को रेस्ट। और पुश पुल लेग में भी संडे को रेस्ट था, ठीक है। तो इन दोनों अब मैंने पुश पुल लेग्स बहुत टाइम से फॉलो कर लिया। और मेरे को ब्रो स्प्लिट से सच बताऊं तो नफरत थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था बहुत ही पागल लोग होते हैं जो ब्रो स्प्लिट को फॉलो करते हैं। अगर आपको चेंज करना है ब्रो स्प्लिट से पुश पुल लेग्स, अगर आप भी कर रहे हो पुश पुल लेग्स से आपको ब्रो स्प्लिट में चेंज करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बता रहा था। और बाकी एक क्रिस बम्पस्टेड की स्प्लिट है जो ओलंपिया उन्होंने, क्योंकि वो टू टाइम्स मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो उनकी फोटो हो यहाँ पे साइड में आ रही होगी, तो उनकी स्प्लिट या तो फॉलो करूंगा या ब्रो स्प्लिट फॉलो करूंगा। पुश पुल लेग को मैं थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि शायद इसकी वजह से भी मेरी थोड़ी ग्रोथ रुक गई है। अभी मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ जिम में थोड़ा, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं बहुत टाइम से प्लेट्यू कर रहा था, तो ऐसी कुछ है मेरी ट्रेनिंग स्प्लिट अभी फिलहाल। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और अच्छी भी लग गई है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय। और मैंने बहुत टाइम से व्लॉग एंड नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा आज व्लॉग एंड कर दूँ। और तुम्हारा भाई स्मार्ट भी लग रहा था थोड़ा, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।